Okay, let's continue. Now we will see the legislative relations between center and state. So we all know that how the list system divides the power between center and state. We have three lists: union list, state list, and concurrent list. So there are almost, you can say, 97 items here. And in the state list, we have 61 items, and here we have 48 items. So who makes law on the union list? It is the center. Who makes the law on state list? It is the state. And who makes law on the 48 items mentioned in the concurrent list? It is both. The center also can make the law and state can also make the law. However, the laws made by the center, for example, on corruption, both can make the law. And until and unless the law made by the center and law made by the state is not conflicting with each other, both the laws will prevail. But if there is a conflict, then the law of the center will be valid. हालांकि इसमें भी दो तीन बातें हैं कि if the state government is having, तो अभी आजकल ऐसा नहीं है कि सेंटर का लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेट. दोनों में जो ज्यादा रैशनल होगा वही प्रिवेल करेगा. ठीक है, अब ये नया प्रिंसिपल आ गया है. दोनों में जो ज्यादा रैशनल होगा वही प्रिवेल करेगा. पहले क्या था कि सेंटर विल डोमिनेट द लॉज मेड बाय द स्टेट इन द कंकरेंट लिस्ट. अब इफ देयर इज एनी लेजिस्लेटिव डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, then these legislative disputes are resolved through three doctrines. So there are three doctrines to resolve a legislative dispute. To resolve legislative disputes between the center and state. What are the three disputes? The first important dispute is doctrine of pith and substance. We have a doctrine of pith and substance. Second, we have the doctrine of colorable legislation. Colorable legislation. And then we have the third one, that is the doctrine of harmonious construction. Harmonious construction. Then we have doctrine of colorable legislation. Then we have doctrine of pith and substance. So first we will see doctrine of pith and substance. What is doctrine of pith and substance? Then we will see what is doctrine of colorable legislation. Then we will see the doctrine of harmonious construction. What is doctrine of pith and substance? It is a simple doctrine which tells that if there is any dispute with respect to the lawmaking power. Suppose a state government is making a law and center is saying that you cannot make this law because this law is related with a matter of union list. So you don't have the powers to make the laws on the union list. Or union is making a law, and while making a law, it has certain provisions which is related with the state list, and state government is opposing that you cannot make such law because your law is containing some provisions related with the state list, and the center doesn't have the power to make the laws on the state matter. So what you will do in such cases? So only with the help of examples you can understand. So example number one. For example, state makes a noise pollution law. Noise pollution law. ठीक है? And one of the provisions of law is related with ban on use of loudspeakers. Ban on use of loudspeakers. And loudspeakers are mentioned in union list. Loudspeakers are mentioned where? Are mentioned in union list. In this case,
union government objects. In this case, union government objects and says that on the pretext of that while making a noise pollution law, while making a noise pollution law, because pollution is part of state list. Pollution and public health, both are public health are in a state list. Correct? So state makes a noise pollution law, and one of the provisions of law is related with ban on the use of loudspeaker. And loudspeakers are mentioned in union list. In this case, union government objects and says that while making a noise pollution law, which is related with state list, state government cannot enter into the areas of loudspeaker. Enter into the areas of loudspeaker, as loudspeaker is part of union list. तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें झगड़ा है. अगर आप देखो तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में है, पॉल्यूशन स्टेट लिस्ट में है. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि चूंकि पब्लिक हेल्थ और पॉल्यूशन स्टेट लिस्ट में है, हम नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लॉ बनाएंगे. लेकिन जब उन्होंने एक लॉ बनाया तो उसके एक प्रोविजन में लाउड स्पीकर को बैन कर दिया. और लाउड स्पीकर्स जो हैं वो एक एम्पलीफायर इंस्ट्रूमेंट है, और किसी भी एम्पलीफायर इंस्ट्रूमेंट पर लॉ बनाने का अधिकार यूनियन को है. तो यूनियन इस लॉ को ऑब्जेक्ट करता है. तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस लगाती है और कहती है कि जब कोई ऐसा मामला हो तो हम ये चेक करते हैं कि जो भी क्वेश्चनेबल लॉ है उस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना किसी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, और अपनी जिम्मेवारी को अचीव करने में अगर वो किसी दूसरे लिस्ट में एंटर कर जाता है और वो ये प्रूव कर दे कि बिना दूसरे लिस्ट में एंटर किए वो अपनी जिम्मेवारी को फुलफिल नहीं कर सकता, तो ऐसे केसेस में वो लॉ इनवैलिड नहीं होगा, वो लॉ वैलिड होगा. यानी किसी भी लॉ का जो पिथ और सब्सटेंस है, अगर वो वैलिड है तो उसके पेरिफेरी प्रोविजंस अगर इनवैलिड हैं तो भी लॉ पूरी तरीके से वैलिड होगा. जैसे इस केस में जो नॉइज पॉल्यूशन है, कोई भी लॉ के दो पार्ट हैं. एक उसका पिथ यानी कोर प्रोविजंस मतलब फंडामेंटल प्रोविजंस, और एक होता है जो उसके पेरिफेरी में होते हैं, पेरिफेरी प्रोविजंस, या फिर इसे आप कह सकते हैं माइनर प्रोविजंस. तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही है और तो हम ये चेक करते हैं लॉ को देख करके कि लॉ फंडामेंटली किस चीज से रिलेटेड है. अगर लॉ फंडामेंटली पॉल्यूशन से रिलेटेड है, और नॉइज पॉल्यूशन प्रैक्टिकली बिना लाउड स्पीकर्स को कंट्रोल किए हम नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट बिना यूनियन लिस्ट में तड़पे, बिना छलांग लगाए, स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पाएगी. ऐसे केसेस में अगर मैनर प्रोविजंस इनवैलिड हैं लेकिन फंडामेंटल प्रोविजंस वैलिड हैं, तो वैलिड प्लस इनवैलिड इक्वल्स टू वैलिड. समझ में आया? प्रोवाइडेड मेन प्रोविजंस अगर वैलिड हैं तो फर्क नहीं पड़ता है कि माइनर प्रोविजंस वैलिड हैं या इनवैलिड है. क्लियर है? और एग्जांपल्स देंगे तो समझ में आएगा. आया समझ में? दूसरा एग्जांपल लो. जैसे यूनियन लिस्ट में टेररिज्म है और स्टेट लिस्ट में पुलिस है. अब टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए
यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट का एक कानून 2008 में लाया। इस एक्ट के अंदर में बहुत सारे प्रोविजंस थे, लेकिन कुछ प्रोविजंस ने पुलिस की पावर को कम कर दिया। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट इस लॉ को इनवैलिड कह सकती है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि आपका काम है टेररिज्म पर लॉ बनाना, और टेररिज्म पे लॉ बनाते बनाते आप पुलिस के पावर्स को छेड़ नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि इस तरह के विवाद में मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट यहां पर पिथ एंड सब्सटेंस का डॉक्ट्रिन लगाएगी, जिसके अनुसार जो भी क्वेश्चनेबल लॉ है, जैसे एनआईए, इसको दो भागों में तोड़ा जाएगा कि इसका मेन प्रोविजंस क्या है और इसके माइनर प्रोविजंस क्या है। तो इस लॉ के प्रोविजंस को देख करके कोर्ट ये पता करती है कि इस लॉ का इंटेंशन क्या है। अगर इस लॉ का इंटेंशन टेररिज्म को रोकना है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, और उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट के पास कॉम्पिटेंसी है, और अगर कोर्ट ये कन्विंस हो जाए कि एनआईए बिना पुलिस के पावर को कम किए टेररिज्म कंट्रोल नहीं कर सकती है, और इसीलिए उसके लिए जरूरी है कि वो पुलिस के पावर्स को कंट्रोल करे, तो फर्क नहीं पड़ता है कि माइनर प्रोविजंस जो हैं वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड हैं। अगर मेजर प्रोविजंस यूनियन लिस्ट से रिलेटेड हैं, तो पूरा का पूरा लॉ क्या होगा? वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि मेन प्रोविजंस वैलिड हैं, और माइनर प्रोविजंस अगर इनवैलिड भी हो तो पूरा लॉ क्या होता है? वैलिड होता है। यानी वैलिड प्लस इनवैलिड इक्वल्स टू वैलिड। ठीक है, यानी मेन प्रोविजंस अगर वैलिड है तो फर्क नहीं पड़ता कि माइनर प्रोविजंस वैलिड है या इनवैलिड है। माइनर अगर इनवैलिड होगा तो भी पूरा का पूरा लॉ वैलिड होगा। ठीक है, तो जिस गोल को अचीव करने के लिए आपने कोई लॉ बनाया, और उस गोल को अचीव करने के लिए अगर आपको दूसरे सरकार के क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो आप जा सकते हैं। जैसे अल्कोहल के ऊपर बैन, एक और एग्जांपल देखो। जैसे स्टेट लिस्ट पब्लिक हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक लॉ बनाती है, और इस लॉ का उद्देश्य है क्राइम को रोकना, और इसी में ये अल्कोहल के ऊपर पूरा बैन लगा देती है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो यूनियन लिस्ट के ऊपर अंदर आते हैं, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहल को या इंपोर्ट ऑफ अल्कोहल को बैन करने की ताकत यूनियन के पास है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसे टोटल तरीके से बैन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यूनियन गवर्नमेंट इस फैसले के स्टेट के इस फैसले को रोकेगी, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का यह मानना होगा कि अल्कोहल के सारे मैटर्स पर स्टेट को पावर नहीं है। स्टेट को सिर्फ इतना पावर है कि अल्कोहल की वो स्टोर को बैन कर सके, अल्कोहल के मार्केटिंग को बैन कर सके, अल्कोहल पर जो टैक्सेस लगते हैं उसको कंट्रोल कर सके, लेकिन अल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, अल्कोहल के एक्सपोर्ट के ऊपर, अल्कोहल के इंपोर्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर नहीं है। ये पावर जो है वो सेंटर के पास है। फिर भी स्टेट जो है एक लॉ बना करके मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सबको कंट्रोल करती है। ऐसे मामले में भी डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस लगेगा। बिहार के अल्कोहल लॉ को दो भागों में तोड़ा जाएगा, और ये पता किया जाएगा कि इसका मेजर प्रोविजंस क्या है, मेजर इंटेंशन क्या है। तो पता चलेगा मेजर इंटेंशन पब्लिक हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम को रोकना है, महिलाओं की सुरक्षा है, और इन सारे अचीवमेंट्स को, इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए अगर अगर स्टेट को सेंटर के लिस्ट में जाकर के अल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग पर बैन लगाना पड़ता है, तो भले ही ये स्टेट के पास पावर नहीं है, तो भी पूरा लॉ वैलिड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस? कि किसी भी लॉ के मेन प्रोविजंस पर किसी गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंसी है,
तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि माइनर प्रोविजंस पर कॉम्पिटेंसी है या नहीं. If you have the competency on the main provisions, then it doesn't matter whether you have competency over the minor provisions or not. So what is doctrine of pith and substance? If a government has competency on the main provisions of law, जिसको हम कहते हैं pith and substance of law, pith and substance of law, then it does not matter whether it has a competency or not on minor provisions of same law, on minor or peripheral provisions of the law, provisions of law. ठीक है. तो जैसे कि टेररिज्म के नाम पर आप पुलिस के पावर को कम कर सकते हैं. अगर आपका इंटेंशन टेररिज्म को रोकना है और सेंट्रल गवर्नमेंट टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी ला रही है और उस एजेंसी की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए पुलिस की पावर को कम करना होगा, तो भले ही सेंटर के पास पुलिस के ऊपर पावर ना हो तो भी ये लॉ वैलिड होगा, क्योंकि इस लॉ का जो पिथ है उस पर इसकी कॉम्पिटेंसी है. उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को रोकने के लिए पूरे के पूरे यूनियन लिस्ट, पूरे के पूरे अल्कोहल लॉ को बैन कर सकती है, अल्कोहल को बैन कर सकती है. पॉल्यूशन के नाम पर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे पॉल्यूशन को रोकना तो वो पॉल्यूशन को रोक सकती है, भले इसके लिए उसे यूनियन के लिस्ट में जाकर के जो हस्तक्षेप करना पड़े, तो भी वो हस्तक्षेप वैलिड होगा.